Hello students, welcome to MDC Learning. Today we will start with the part 2 of chapter number 1, that is Globalization and Indian Society for standard FI BCom, and the subject is foundation course. So let's start. This is the picture of a globalization which I have already taught you in the last lecture. So just go through once. It's just a recap. Globalization, it means what? It's a free flow of goods and services from one country to another country. करेक्ट, हम लोगों ने ऑलरेडी इसके बारे में बहुत डिटेल में स्टडी किया है. आई हैव टॉट यू अबाउट व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन and what are the positive and the negative impact of globalization. Why is it not useful? Why is it why is it almost useful? There's all such things which I have already taught you in the last lecture. Just go through once that video also if you haven't seen yet. Now let's move forward for a new topic, that is today. For new topic for today, that is liberalization. Correct. The word liberalization means a free trade. This concept of liberalization has been started in the 1991 under under industrial policy. Correct. This policy has been started by CV Narasimha Rao, who was our prime minister at that time, and with the help of him, Dr. Manmohan Singh was also there, and these two persons have specialized. These two persons are initiated this policy, which has been came from 1991 to 2021 now. Correct. The term liberalization, as I said, that is freedom of business enterprises without the government control. You can work, you can start your business without the limitation or the interaction of a government. आप अपने own से normally without any restrictions normally आप इस पे normally workout कर सकते हो. क्लियर. जैसे मैंने आपको बताया, नरसिम्हा राव एंड डॉक्टर मनमोहन सिंह. करेक्ट. एंड इट इज़ बिन फॉलोड राइट. हमें ऐसा बोला जाता है कि लिबरलाइजेशन बहुत ही यूज़फुल चीज़ है, एंड टुडेज़ 20th सेंचुरी 21st सेंचुरीज़ में वी रिक्वायर्ड. तो ये LPG सिस्टम स्टार्ट किया था. आई होप एवरीवन नो LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P stand for privatizations, and G stand for globalization. इसमें से वी हैव आई हैव कंप्लीटेड विद द G part, that is globalization. Correct. So this is all such is the meaning. If you want in a proper format, I have written that also. This is a proper meaning of liberalization. The term liberalization indicate freedom or a relaxation of a business enterprises from a government control. There is no restriction from a government control. The term refers to relaxation of a government restrictions, usually in areas of a social or economic policy. In the area of a social policy, it may refers to the relaxation of laws that restrict. इसका उन्होंने बताया कि अगर हमारे वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन दिया है, हमारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग वर्क नहीं किया है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्टेप्स को लेके सिर्फ हमें बंद किया है, बाकी सब हमें पूरा अलाउड है. आई थिंक ओनली 6 to 7 पॉइंटर्स ऐसे ही हैं जिसमें गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाए हैं, बिकॉज दैट इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट और एल्स दैट इज़ नॉट एट ऑल यूज़फुल फॉर अ इन्वायरमेंटल थिंग. इसके लिए वो ने वहाँ पे रोक टोक लगाए. उसके अलावा एवरीथिंग इज़ बिन लिबरल टू एवरीवन. उसके बाद उन्होंने बोला है कि द टर्म लिबरलाइजेशन इज ऑफन रिफर टू इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन, नॉट ओनली लिबरलाइजेशन इन अ बिजनेस वर्ल्ड. इकोनॉमिक सिचुएशंस के लिए अकॉर्डिंग भी हम लोग लिबरलाइजेशन वर्कआउट कर सकते हैं, एंड हमें लिबरल दिया गया है इन अ कैपिटल मार्केट ऑल्सो, इन अ ट्रेडिंग मार्केट ऑल्सो. हमें प्रॉपर तरीके से लिबरल करने की उन्होंने कोशिश की है. वेर एवर यू वॉन्ट, हाउ एवर यू वॉन्ट, यू कैन वर्क ऑन दैट पर्टिकुलर थिंग्स. करेक्ट. Afterwards, they have said that economic liberalization is a process of initiating many structural reforms in an economy. अगर हमें प्रॉपर तरीके से इकोनॉमिक वर्कआउट करना, इफ़ आई वांट टू डू इन अ प्रॉपर फॉर्मेट, तो आई हैव टू फॉलो द इकोनॉमिक लिबरलाइजेशंस. जैसा हमारी गवर्नमेंट की रूल्स रेगुलेशन पॉलिसीज़ में बनाया है, उसके अकॉर्डिंग हमें वर्कआउट करना चाहिए. बोलते हैं ना, ख़राब होने से बेटर है हम लोग पहले क्योर जो होने वाला है उस पर ज़्यादा ध्यान रखें हम लोग. उससे क्या होगा, प्रॉपर तरीके से मेरा काम होगा एंड मुझे प्रॉपर तरीके से जस्टिफिकेशन मिलेगा. करेक्ट. तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है.
एंड हम लोग लिबरलाइजेशन इसलिए मेन इंपॉर्टेंट करते हैं क्योंकि हम लोग चाहते हैं हमारी इंडस्ट्री की पॉलिसी चेंज हो। यू नो आई कैन नॉट वर्क ईच एवरी टाइम इन ऑन दैट पर्टिकुलर रूल्स एंड रेगुलेशन। एक ही पॉलिसी इतने सालों से चलती आ रही है, तो समथिंग चेंजेस होना चाहिए, अदरवाइज देर इज़ नो यूज़, देर इज़ नो हैप्पी मूवमेंट, और अच्छा नहीं लगेगा हमें एक ही काम पे बार करने के लिए। तो कुछ चेंजेस इंपॉर्टेंट है हमारे अलग अलग सेक्टर्स में, हमारे प्रोफेशनल लेवल्स में, कॉर्पोरेट लेवल्स में, वो अलग अलग मार्केट्स के लिए, तो हमें लिबरलाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। सेकेंड वन हमें बताता है हमें वी हैव टू नो प्रॉपर तरीके से अपग्रेड होना चाहिए हमारा टेक्नोलॉजीज। इफ़ जस्ट आप लोग एग्जाम्पल सोचो कि सपोज अभी आज के टाइम पे एवरीवन इज़ यूजिंग अ स्मार्टफोन्स। सो जिसको अभी हमें हमें मालूम है कि स्मार्टफोन्स कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, कम्युनिकेशंस। आजकल हम लोग बिजनेसेस के लिए हम लोग आराम से स्मार्टफोन का यूज़ कर सकते हैं। दोज पर्सन हु इज़ नॉट एट ऑल यूजिंग दैट स्मार्टफोन, कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले अभी कर रहा है। अभी मैं छोटा सा फ़ोन लेके जो पहले चलता आ रहा है, अगर वो अभी भी वो लोग यूज़ करते हैं, जिसको ये चीज़ें नहीं यूज़ करनी है, करेक्ट, द एजुकेशन और उनको सब काम नहीं करना है, उनके लिए नॉर्मल स्मार्ट फोन, छोटा सा फ़ोन, दैट इज़ ओके। तो हम लोग डे बाय डे जैसा हमारा सिचुएशन बदल रहा है, जैसा हमारा वर्ल्ड बदल रहा है, जैसा हमारा टाइम्स बदल रहा है, मॉडर्न टाइम्स आ रहा है, हम लोग ट्रेडिशनल वेज को थोड़ा भूल जा रहे हैं। वो हमारे अपग्रेडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे टेक्नोलॉजीज़ को लेके। The third one, that is changes in a trade and policies. Of course, we have to, with the help of the governmental only, with the help of business parties only. Every time I have to keep changing my prices. Not every time, but once in a while I have to keep prices. अगर मेरे को if I'm not getting any of the profit, I am keeping that particular product in the same price only from last 2 year 10 years. तो what the use, I am not getting at all a profit, correct? तो profit maintain करने के लिए changes in trade के लिए, क्योंकि custom changes होता है, product changes होता है, माई लाइक डिसलाइक इज़ बिन चेंजिंग, करेक्ट। तो ये हमको ध्यान में रखने के लिए हम लोग प्रॉपर इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ को वर्कआउट करते हैं। एंड हमारे इकोनॉमिक में फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा अच्छा बढ़ जाता है प्रॉपर तरीके से। आई एम इनहांसिंग द इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट थिंग्स ऑल्सो। आई एम मोर द गवर्नमेंट इज़ बिन मोर फोकस ऑन मोस्ट ऑफ इम्पोर्ट थिंग बिकॉज आई एम गेटिंग अ फॉरेन करेंसी। एंड हमें एक्सपोर्ट भी रिक्वायरमेंट है क्योंकि वो प्रॉपर तरीके से बैलेंस बिटवीन होना चाहिए, करेक्ट। देर इज़ नो ऑलवेज अ सरप्लस एंड देर इज़ नॉट ऑलवेज बी अ डेफिसिट। तो वो मेंटेन करने के लिए आई एम मेकिंग श्योर कि प्रॉपर तरीके से वर्कआउट हो सके। So these are the concept of liberalizations. You all have to go through the ones. Any doubts, definitely you feel free to ask me. This is the elements. जैसे हमने लास्ट टाइम ग्लोबलाइजेशन के एलिमेंट्स किए थे, एलिमेंट्स वी कैन से a scope or a functions of liberalization, how the liberalization is been working. The very first one, that is delicensing of industrial. The industrial policy 1991 abolished the licensing of most of the industries. पहले टाइम पे बहुत अलाउ था, जो टोटली इस पे लोग वर्कआउट करते थे आराम से बिना बताए, गवर्नमेंट के नीचे अंडर द टेबल जैसे वर्कआउट करते थे। लेकिन जब से 1991 के अंदर ही इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ आया, तो गवर्नमेंट ने ऐसे 6 इंडस्ट्रीज़ है विच हैव चूजन। वो लोग विदाउट द गवर्नमेंट परमिशंस दे कैन नॉट ऑपरेट दैट पर्टिकुलर बिजनेस। दे हैव टू टेक अ लाइसेंस। इफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट गिविंग अ लाइसेंस, तो इट मीन्स दे कैन नॉट ऑपरेट दैट पर्टिकुलर बिजनेस, करेक्ट। तो ऑपरेट करने के लिए, उस पर वर्कआउट करने के लिए, दे नीड अ प्रॉपर रूल्स रेगुलेशन वाला प्रॉपर एक लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। सो दिस आर द टोटल 6 पॉइंटर। द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज अल्कोहल। आप अल्कोहल अगर आपको बेचना है, खरीदना है, तो यू हैव टू आस्क का परमिशंस। सिगरेट्स, बिकॉज ऑल आर द प्रोहिबिटेड चीज़ें हैं, अब तो प्रोहिबिटेड ऑलमोस्ट हो चुकी हैं सम ऑफ द कंट्रीज़ में, सम ऑफ द स्टेट्स में। 1991 के बाद में बहुत सारी चेंजेस हुए, बिकॉज ये दिस ऑल आर द हार्मफुल थिंग्स है विच इफेक्ट आर इन्वायरमेंट। थर्ड वन, दैट इज इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव्स, करेक्ट। एग्जाम्पल्स बॉम्ब्स है, गन्स है, वेपन्स है, करेक्ट। तो मेरा मन कर रहा है कि मुझे बॉम्ब्स बनाना है, मेरा मन कर रहा है मुझे गन्स बना रही है, आई कैन नॉट मेक इट, आई हैव टू आस्क अ परमिशन। मुझे बहुत परमिशन लेना पड़ेगा। आई नीड टू गिव अ प्रॉपर सॉलिड रीजन कि वाई आई वांट टू मेक दिस, एंड इज दिस वेरी यूजफुल टू आर कंट्री और नॉट, करेक्ट। इज दिस यूजफुल टू आर एनवायरमेंट और नॉट। तो वो उस चीज़ें को ध्यान में रख के मुझे नॉर्मल इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजिव को नॉर्मल बनाना है। अदरवाइज ऑलमोस्ट सच इट्स बीन सीन अंडर द गवर्नमेंट। फोर्थ वन इज़ डिफेंस प्रोडक्ट। गन्स, मैंने आपको बोला डिफेंसिव लोग हैं कुछ। गन्स मोस्ट ऑफ अलग अलग टाइप्स ऑफ गन्स है, बॉम्ब्स है अलग अलग टाइप के, कुछ एक्सप्लोसिव प्रोडक्ट्स है, करेक्ट। तो वो ध्यान में रख के हमें बनाना होता है। एंड इंडस्ट्रियल एग्जाम्पल में आप एक
ये भी ले सकते हो। हमारे क्रैकर्स भी, करेक्ट, तो क्रैकर्स भी बहुत बहुत बड़ा एक्सप्लोजिव है। छोटी सी क्रैकर बहुत बड़ा आग खराब कर सकती है, फैक्ट्री जला सकती है। अब मिलियंस ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल मे डाई एट अ टाइम। तो वो चीज़ें हमारे हमेशा अंडर द गवर्नमेंटल होती है। गवर्नमेंट उस पर प्रॉपर तरीके से सीन करता है उसको। डिफेंस प्रोडक्ट आपको मैंने बोला, गन्स एंड प्रॉपर तरीके से। नेक्स्ट वन दैट इज ड्रग्स एंड pharmaceuticals. I cannot give, or else I cannot sold, or else I cannot purchase from any other country if I am not having a proper license. Suppose I have a company of medicines, I have a company of all such pharmaceutical things. But suppose I want to make, or suppose I want to purchase a raw material, or some of the medicines from any other country, I have to ask my government should I take it or not. If the government say that is not at all useful, otherwise this being made in our country also, I cannot purchase that thing, because the medicines may harm the patient, which is not at all required, correct. तो उसके लिए हमें यहाँ पे वो लोग बंद करते हैं, बिकॉज सम ऑफ द इलीगल थिंग्स ऑल्सो मे बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम एनी ऑफ द कंट्री टू आर कंट्री। तो उसको वो लोग ने बहुत ही निकेड आई से, गवर्नमेंटल ने उस पर ध्यान रखा है, एंड दे आर नॉट एट ऑल, हमें मना कर देते हैं अगर आप लोग कोई ऐसी चीज़ें परचेज़ कर रहे हो, बिकॉज कहीं ना कहीं एक्सप्लोजिव है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे इन्वायरमेंट को लेके, बहुत ज़्यादा ख़राब है हमारे लोगों को लेके, करेक्ट। तो इसलिए उन्होंने बंद करके रखा है। नेक्स्ट वन दैट इज़ हज़ार्डियस केमिकल्स। डेफिनेटली मैनी ऑफ द केमिकल्स हम लोग ज़्यादा इसको नहीं यूज़ कर सकते हैं। और हमें अगर सपोज आई हैव टू मेक एनी ऑफ द केमिकल्स, आई कैन नॉट ऑपरेट इन अ रेसिडेंशियल एरिया। मुझे का फैक्ट्री बहुत दूर जाके फैक्ट्रीज में उसको बनाना पड़ेगा, क्योंकि उसे वाटर पोल्यूशन हो सकता है, उसे एयर पोल्यूशन हो सकता है, करेक्ट, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन हो सकता है। तो वो हज़ार्डियस पोल्यूशन है, एंड केमिकल्स एक्सप्लोड हो सकते हैं, तो बहुत दूर जाके उसको बनाया जाता है। उसे जो भी चीज़ें प्रोडक्ट बनती है दैट इज़ बीन फर्निशिंग एवरी टाइम प्रॉपर, ताकि जो प्रोडक्ट कस्टमर अगर यूज़ करे उसको कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट ना हो, क्लियर। तो उसके लिए हज़ारे केमिकल्स अगर आप बना रहे हो तो हमें बहुत दूर जाके उसे वर्कआउट करना चाहिए। तो दीज आर द टोटल 6 इंडस्ट्रीज विच गवर्नमेंट इज़ बीन सीन फ्रॉम their ओन purpose only, and they are being proper तरीके से investigation, they are monitoring each and every activities of all such 6 industries. नेक्स्ट वन दैट इज़ लिबरलाइजेशन ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। यहाँ पे उन्होंने बताया है कि प्रायर टू 1991 में बहुत नेसेसरी होता था हमें अप्रूवल लेने के लिए गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ की कि हमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे कंट्रीज़ में करना है। लेकिन जब से हमारे कंट्री में लिबरलाइजेशन हो गया है ना, अंडर द एक्ट ऑफ 1991, द IP एक्ट 1991, तो यहाँ पे उन्होंने बताया है कि हमें अगर कोई भी इंडस्ट्रीज़ है, अगर हाई प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है, हाईटेक प्रायोरिटी इंडस्ट्रीज़ है, तो नॉर्मली आपको यहाँ पे परमिशंस मिल सकता है। एंड हमारी कंट्री में भी 110% ऐसे अलग अलग सेक्टर्स हैं जहाँ पे हम लोग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का यूज़ कर सकते हैं। एक्सपोर्ट हो गया, बाद में हमारे यहाँ पे होटल से, टूरिज़्म से, तो ऑल डबल वर्ल्ड में चलता आ रहा है, करेक्ट। तो हम लोग विद द हेल्प ऑफ ऑल सच थिंग्स ना, हम लोग प्रॉपर तरीके से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, डायरेक्ट उस पर वर्कआउट कर सकते हैं। हम लोग फॉरेन कंट्री से, या हम लोग वहाँ जाके आराम तरीके से इन्वेस्टमेंट वर्कआउट कर सकते हैं। पहले ऐसा था, अगर हमारे कंट्री में ग्लोबलाइजेशन नहीं होता तो शायद हम लोग बाहर जाके हमारी कोई चेंज, स्केलर चेंज है ना, प्रॉपर तरीके से हम लोग ब्रांचेस नहीं बना सकते। लेकिन जब से ग्लोबलाइजेशन आया, लिबरलाइजेशन आया है, तो अगर सपोज़ मुझे मेरी कंपनी को और अच्छा प्रमोट करना है, आई नीड टू सपोज़ आई हैव अ ब्रांच इन मुंबई, और मेरा अच्छा खासा आउटलेट है, मेरी कंपनी बहुत अच्छी बेस्ट चल रही है, आई मे हैव अ वन आउटलेट, आई मे हैव अ ब्रांच इन अदर कंट्रीज और दैट इज फॉरेन कंट्रीज ऑल्सो। रीज़न, मुझे वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना है, आई हैव टू वर्क ऑन दैट थिंग्स। सो अब वो आपको आराम से मिल चुका है। एंड एनी ऑफ द थिंग्स, मैनी आर यूजिंग ऑल सच थिंग्स, करेक्ट, ताकि हमारी कंट्री में डेवलपमेंट हो, हमारी कंट्रीज़ में बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आए, मेरी कंपनी को एम्प्लॉयमेंट मिले, मेरी कंट्री में फॉरेन करेंसीज आए, मेरे लोगों को प्रॉपर तरीके से जो उनको मिलना चाहिए, प्रॉपर वैकेंसीज हो, जॉब्स मिले, जॉब्स प्रोवाइड किया जाए, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ सके। तो वो ध्यान में रख के हम लोग ने फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI हम लोग ने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। These are the 2 pointers of elements. Next 2 pointers, that is foreign of liberalization of foreign technologies also, under the IP Act, that is Industrial Policy Act 1991 के टाइम पे हम लोग इम्पोर्ट करते थे any of the foreign technologies. आपको लग रहा है this software, this computers is been the laptops or the Macs, MacBook,
ये सब हमारी कंट्री में इंपोर्ट किया जाता है। हमारी कंट्री में, और सपोज़ हमें एप्पल की बात करते हैं, तो एप्पल हमारी कंट्री में शायद, आई थिंक, जितना मुझे याद आ रहा है, नहीं बनता है। अगर बनता भी होगा शायद अभी उन्होंने चेन्नई में स्टार्ट किया है, पहले हमारे कंट्रीज़ में नॉर्मल बनता नहीं था, करेक्ट। तो हम लोग बाहर की वो जो सॉफ्टवेयर्स है ये वो ऑपरेट कर चीज़ों को, ऐप्स को हम लोग हमारी कंट्री में नॉर्मली इंपोर्ट करते थे, हम लोग उस पर नॉर्मली वर्कआउट करते थे। तो अभी हमें विदाउट एनी गवर्नमेंट परमिशंस आप आराम से नॉर्मल फ्री फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजीज़ भी आराम से कर सकते हो। आप जितना चाहे उस पर परचेज़ कर सकते हो, जैसा आपको प्रॉफिट कमाना है कमा सकते हो। बस आपको गवर्नमेंट के जो थोड़ा बहुत फॉर्म्स एंड थोड़ी बहुत उसमें जो भी उनको रिक्वायरमेंट होती है, अथॉरिटीज़ होती है, वो आपको यहाँ पे देनी पड़ती है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत सारे केसेस हो गए हैं टेक्नोलॉजीज़ के, जो हम लोग अगले कंट्री से नॉर्मली लेते आ रहे हैं। पर हम लोग अगर सपोज आई एम टेकिंग एनी ऑफ द टेक्नोलॉजीज़ ना, फर्स्ट आई हैव टू टेस्ट, प्रॉपर टेस्टिंग उसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमारे डेवलप में काम आ रही कि नहीं आ रही। इफ़ इट्स नॉट डू, वाई टू वेस्ट मनी, करेक्ट। हम लोग क्यों वेस्ट करें इफ़ इट नॉट एट ऑल बीइंग यूज्ड, और या फिर हमारी कंट्री में नॉर्मली आ सकती है, करेक्ट। तो इसके लिए हम लोग फॉरेन टेक्नोलॉजीज़ को नॉर्मली यूज़ करते हैं। हम लोग देखते हैं कितना हमें फ़ीस मिलना चाहिए, और आज के टाइम पे ऑलमोस्ट 2 मिलियन 3 मिलियन पीपल हमारे कंट्री में आके लोग काम करते हैं। इतना डॉलर भी लगाते हैं वो लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करने के लिए नई नई टेक्नोलॉजीज़ को लेके। एंड द लास्ट वन दैट इज़ ऑटोनॉमी टू पब्लिक सेक्टर यूनिट्स। वो हमने उनको ऑटोनॉमी दे के रखी है, आपका है पब्लिक सेक्टर, चलो आपको परमिशन मैंने दे के रखा है, आप जैसा चाहे हमारे कंट्री में नॉर्मल पब्लिक सेक्टर नॉर्मली यूज़ कर सकते हैं। आपको अलग अलग कंट्री गवर्नमेंट ने हमारे ऑटोनॉमिक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर PSU की 3 बना के रखा है, जहाँ पे आप चाहे तो आपको फ्रीडम दिया गया है आपके खुद के डिसीजन मेकिंग के लिए। आप चाहते हो तो आप क्विकली डिसीजंस लेके, आपको गवर्नमेंट बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करेगी, कुछ भी रिस्ट्रिक्शंस डालेगी नहीं। आप खुद का अपना नॉर्मली प्राइवेट सेक्टर नॉर्मली यूज़ कर सकते हो, करेक्ट। सपोज़ मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। पहले टाइम पर टेलीफोन्स में खाली कौन सा महानगर टेलीफोन आता था, अभी आजकल इंडस सब कुछ प्राइवेटाइजेशन हो गया। पहले खाली महानगर का टेलीफोन आता था, MTNL का टेलीफोन आता था, HP का टेलीफोन आता, HP नहीं, सॉरी, हाँ HP एक अलग कुछ वर्ड था, वो पहले टेलीफोन्स आता था। आज के टाइम पे ऐसा नहीं है, आप लोग हमारा पूरा कवर अप हो गया विद द हेल्प विद द प्राइवेट सेक्टर्स। अब वोडाफोन है, जियो है, आइडिया है, रिलायंस वाला जो हमारा चीज़ें चल रही है, कितने सारे ऐसे अलग अलग सिम्स कार्ड्स आ गए हैं, टेलीफोन के अलग अलग कंपनीज आ गए। तो हम लोग पूरे टोटल रिलाई हो गए हैं, डिपेंडेंट हो गए ऑन अ प्राइवेट सेक्टर्स, करेक्ट। तो गवर्नमेंट इज़ गिविंग परमिशंस टू प्राइवेट सेक्टर ऑल्सो टू बिल्ड अप देयर ओन कंपनी, बिकॉज इट्स बीन अंडर द पॉलिसी ऑफ 1991, करेक्ट। तो ये दिस आर द प्राइवेट सेक्टर्स में नॉर्मली किस तरीके से चीज़ें वो लोग यूज़ करते हैं, किस तरीके से वो लोग यहाँ पे काम करने की कोशिश करते हैं। क्लियर? आई होप नो डाउट्स यहाँ तक किसी को, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू आर फील फ्री टू आस्क मी। थैंक यू।